जी guys, so in the last class we were at barcodes. So what happens when the barcode is scanned? These are some points which we have to see. The barcode is first read by a red laser or red LED light, that is light emitting diode. Light is reflected back off the barcode. The dark lines, the dark areas reflected little or no light, which allows the bar to be read. बारकोड्स आपने देखे ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस के, ठीक है। तो ये जो ब्लैक लाइंस आर सेट टू बी डार्क लाइंस एंड व्हाइट लाइंस आर सेट टू बी लाइट लाइंस। तो जो डार्क लाइंस है ना, वो बेटा कम रिफ्लेक्ट करती है, हमेशा याद रखना। जब लाइट स्कैन होती है, वो एक लेजर लाइट जो उसके ऊपर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो ब्लैक लाइंस जो है वो कुछ एरिया ऑफ लाइट जो है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है वो अपने आप के अंदर जो है वो बोलते हैं ना जम कर जाना, या अपने अंदर जो है वो आई एम नॉट हैविंग द स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट, अपने अंदर जो है वो खत्म कर देता है। दैट्स व्हाई नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम बहुत गर्मी होती है, हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि तुमने क्या डार्क कपड़े पहन लिए, इतनी गर्मी है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो सारी, या सूरज की गर्मी जो है सारी इसमें जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो इसी तरह जो है वो बारकोड रीडर जो है वो इसी इसी बेसिस के ऊपर, इसी थ्योरी के ऊपर काम करता है कि ब्लैक लाइट्स, ये डार्क लाइंस जो है उससे रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत कम होती है, ये कुछ नहीं होती। तो उसको जो है वो एज सच अलग रिस्पॉन्ड करता है। और जो वाइट लाइंस होती है वो बड़ी जबरदस्त रिफ्लेक्ट करती है। कहता है ना, द पॉइंट नंबर 3, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रेड बाय द सेंसर्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो सेंसर्स इसको रीड करते हैं। एज द लेजर और एलईडी लाइट इज स्कैन्ड across the barcode, a pattern is generated which is converted into digital data. This allows the computer to understand the barcode. एक पैटर्न जनरेट हो जाता है। वो कैसा पैटर्न होता है? लाइक फॉर एग्जांपल डिजिट 3, ये जो डिजिट 3 आपके सामने है, ये लेफ्ट वन, ये इस वक्त आपके सामने। अगर आप इस डिजिट 3 को देखें, this digit 3 contain first light line, then 4 dark lines, then 1 light line and then 1 dark line। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डिजिट 3 सबको दिख रहा है? ठीक है, the left hand side digit 3 contains the white line, that is light line, then 4 dark lines, then 1 light line and then 1 light line. So let's say this is the example. The digit 3 left generates the L D D D D D L D. That means कि light dark 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 light dark, where L is equals to light and D is equals to dark. This has the same binary equivalent. Light का मतलब 0 and dark का मतलब 1, 0 1 1 1 1 0 1। ठीक है ना? तो ये प्रोड्यूस करता है बारकोड। इट इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द चेकआउट्स इन सुपरमार्केट्स। तो पता लगा व्हाट हैपेंस व्हेन द बारकोड स्कैन। जब बारकोड स्कैन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1 and 0 में कन्वर्ट कर रहा है। और 1 and 0 में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, इसकी स्टोरी अब हम आगे देखेंगे। व्हाट other devices that are used in, at this point of sale are keypad are used for normally keying the information, keying the barcode information when the barcode reader is not scanning the object. So sometimes manually keying the information requires the keypad. Screen monitor are used to simply see what the results of the barcode, what is the cost of this barcode. Then talking about the speakers are used to listen to the beep sound that barcode has been scanned. And the printer is used to print out the itemized bill. Magnetic stripe reader for a user to swipe the credit and debit card at the point of sale, so that they can transfer their funds electronically. And touch screens are the replacements for monitors and screens, where a person can use to touch the information, can touch anything on the screen, और वो जो है वो डेटा जो भी है स्टोर कर रहा हूँ। So the barcode has been read. Then what happens? कहते हैं barcode read हो गया, अब क्या होगा? The barcode number is locked up into the stock database. The barcode is known as the key field in the stock item record. This key field uniquely identifies each stock item. Guys, today's class would be disturbed. It's okay if it is recording, but it is important to record this class for other students. Actually, there's a work just next to my house, तो दीवार से उसकी आवाज़ें आ रही हैं। I cannot manage it. I have closed all the doors and windows, but still I'm getting this voice. So this voice is also recorded. It doesn't matter. You are understanding. You are getting my voice in a better way, I think so.
बारकोड नंबर इज लॉक्ड अप। अब फॉर एग्जांपल बारकोड रीडर ने बारकोड को रीड कर लिया, रीड करने के बाद क्या होता है, फौरन जाता है डेटाबेस के पास बैकएंड पर और चेक करता है ये जो एलडी अभी जो पीछे पढ़ा था ना, जीरोस एंड वंस, इन जीरोस एंड वंस का एक बहुत बड़ी लाइन जो है वो बन चुकी होती है, एक फॉर्मेट बन चुका होता है, और एग्जैक्टली इन वन एंड जीरोस को जो है पीछे जाके बैकएंड पे डेटाबेस में स्टोर करता है और ढूंढता है। तो ढूंढने के बाद जो है वो ऑब्वियसली देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, among which there could be only one type of product that is equals to same with this barcode, ठीक है। तो इसको सर्च करके लेकर आएगा। When the barcode number is found, the stock item is recorded, is looked up। अब ये barcode मिल गया, found यानी जस्ट मिला है, अब इसके अंदर जो रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन है उसे लुकअप कराया जाता है। अब उसके अंदर रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन क्या है, दैट कुड बी द प्राइस ऑफ द स्टॉक आइटम एंड व्हाट इज दैट आइटम, ठीक है। प्राइस एंड अदर स्टॉक आइटम डिटेल्स आर सेंड बैक टू दी चेकआउट और पॉइंट ऑफ सेल। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिस्टम के आगे आ जाती है, स्क्रीन के आगे आ जाती है। यहाँ पे अब कस्टमर भी खड़ा हुआ है और पॉइंट ऑफ सेल पे वो बंदा भी है जो चार्ज कर रहा है। The number of stock item is recorded in the record is reduced by 1 each time the barcode is read. Why it is reduced by 1? I'm unmuting you because it is very important to understand. I'm unmuting you. Let me know why this is reduced by 1. Yes. Anyone? Okay, sir. हाँ बस बोलो। सर स्टॉक आइटम जो नंबर डाल दिए थे अंदर, जैसे अगर वो 40 है तो वो रिड्यूस से कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से स्टॉक आइटम चला गया है तो 39 बचे। क्यों चला जाए? मतलब एक सेल हो गया तो उसने वहाँ पे सेंड कर दिया है कि 49 बचे हैं। Exactly. This is the reason. Yes, Anas, what you were saying? सर मैं बस ये कहने लगा था कि मुझे ऐसा क्वेश्चन का समझ नहीं आया, मैं कहने लगा रिपीट कर दूंगा। मैंने कहा कि बात से आंसर दे रहे तो दे दे मेरा आंसर। क्या आप समझ में आ गया क्वेश्चन और बासित का आंसर? जी सर। Okay, that's great. I'm muting you again. The stock item, it is reduced by 1. The reason is that, let's say if there is if you are buying a Colgate of 200 rupees, let's say, ठीक है, उस 200 रुपीज को हम लेट्स से कह लेते हैं 100 ग्राम का कॉलगेट आप बाय कर रहे हैं, सिंपल वाला, सादा वाला, बिकॉज कॉलगेट भी वैरायटी ऑफ कॉलगेट्स आती है और इवन एवरी वैरायटी हैज अ डिफरेंट बारकोड। इफ इट इज ऑफ 20 रुपीज वाला, इफ इट इज ऑफ 50 रुपीज वाला, 100 रुपी, 200 रुपी और व्हाटएवर, ये इनके डिफरेंट बारकोड्स होंगे इन अ सिंगल टाइप ऑफ कॉलगेट। आई एम सेइंग अब अगर क्या हुआ कि अगर ये कॉलगेट जो है वो सॉल्टी है, फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना आपके 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 क्या कहते हैं टूथपेस्ट में नमक है, तो वो वाला जो है वो वाला अगर आपका जो कॉलगेट है उसके अलग बारकोड्स होंगे, उसके अंदर भी जो है वो 50 वाला, 10 वाला, 100 वाला, 200 वाला, फॉर एग्जांपल। एंड कॉलगेट में स्वाद भी हो गया, कॉलगेट हर्बल भी हो गया, कॉलगेट सूदर्स भी हो गया, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलगेट। So just to let you know that the only single product have a variety of products and all these products have a different barcode. So when that item which is at the point of sale is scanned, that item is in the record is reduced by 1. That means that is showing कि ये item अभी point of sale पे खड़ा हुआ है, इसे एक कम कर दो क्योंकि मार्केट से यानी मेन स्टॉक से ये माल निकल गया, ये माल बिक गया, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है -1 हो जाता है। देन आगे क्या कह रहा है, दिस न्यू वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक इज रिटन बैक टू द स्टॉक आइटम रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल आइटम्स थे 5672, 5672, when this one item comes at the barcode reader, yeah, in front of the scan at the barcode reader, it will become 5671, 5671 रह जाएंगे। If the number of stock item is compared to the reorder level, now what is reorder level? Let me describe. Let's say Colgate जो है वो 5671 रह गए हैं, लेकिन Colgate जो है वो रीऑर्डर कर लेने चाहिए, यानी इम्तियाज सुपरमार्केट की एग्जांपल ले लें, इम्तियाज के पास एटलीस्ट स्टॉक के अंदर 2000 पीस होने चाहिए क्योंकि इतना तो डेली बिक ही जाता है, ठीक है। तो 2000 जो है वो रीऑर्डर लेवल है कि जैसे ही 2000 में पहुंचे वैसे ही जो है फौरन इम्तियाज जो है वो इसे रीऑर्डर कर ले, दैट इज कॉल्ड अ रीऑर्डर लेवल। सो द रीऑर्डर लेवल फॉर दिस टाइप ऑफ कॉलगेट इज 2000, ठीक है। राइट नाउ जो अभी एक कॉलगेट बिका दैट इज इक्वल टू 5671,
बिकने के बाद तो क्या होगा, द न्यू वैल्यू फ्रॉम द स्टॉक आइटम इज रिटन बैक टू द स्टॉक आइटम रिकॉर्ड. अब द नंबर ऑफ स्टॉक आइटम इज कंपेयर्ड, अब इसे कंपेयर किया जाएगा टू द रीऑर्डर लेवल. व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? 2000. व्हाट इज द नंबर ऑफ आइटम? 5671. तो पूछा जाएगा क्या 5671 इज लेस देन और इक्वल टू 2000? जवाब में आएगा क्या? yes or no? Obviously the answer is no. It is not equal to और it is not less than. तो जब कुछ नहीं होगा तो फिर जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा. गाइस इसे छोड़ लो. जी गाइस, so it equates or it compares 5671 is less than equal to 2000. The answer would be no. The answer would be no. फिर लेट से समझो एक और बार को एक और जो है कोलगेट बिकता है 5670 हो जाता है, एक और बिकता है 56 जो है वो 69 हो जाता है, 5668 होगा एंड सो ऑन करते 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 एक पॉइंट आएगा कि 2000 हो जाएगा. ठीक है, 2001 होगा, एक और बिकेगा और 2000 हो जाएगा. अब सवाल, द नंबर ऑफ स्टॉक आइटम दैट इज 2000 इज कंपेयर्ड टू द रीऑर्डर लेवल दैट इज 2000. ठीक है, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू दैट इज 2000 इक्वल टू 2000, जवाब में फर्स्ट टाइम आएगा यस. अब जैसे ही आएगा यस, देन व्हाट विल हैपन? मोर स्टॉक आइटम आर ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड. तो ऑटोमेटिकली अब अच्छे जो ऑटोमेशन सिस्टम होते हैं तभी इनको बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम. ये इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर कर दिए जाते हैं. ठीक है, नया स्टॉक ऑटोमेटिक ऑर्डर, नया स्टॉक ऑटोमेटिक ऑर्डर, फौरन जो है वो मंगवा लिया और मंगवा लिया, ताकि जो है वो मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की इंटरेक्शन आप देखो कितनी कम हो गई, ह्यूमन इंटरवेंशन कितनी कम हो गई. खुद इसको बता दिया दिस इज द रीऑर्डर लेवल फॉर दिस स्पेसिफिक आइटम एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, और हर प्रोडक्ट के ऊपर रीऑर्डर लेवल होता है. ऑटोमेटिकली ईमेल शूट करेगी, फौरन जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचेगी या फॉरेन कंपनी तक पहुंचेगी और कंपनी से माल जो है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई इम्तियाज के पास माल शॉर्ट हो रहा है, कॉलगेट शॉर्ट हो रहा है, फॉरेन जाओ कॉलगेट पहुंचाओ. तो कहता है वंस एन ऑर्डर फॉर मोर स्टॉक आइटम इज जनरेटेड, जब एक मरतबा एक आइटम के लिए जनरेट कर दिया गया रीऑर्डर लेवल, मतलब एक मरतबा क्या कहते हैं ऑर्डर कर दिया गया, फ्लैग इज एडेड, एक फ्लैग लगा दिया जाता है. फ्लैग का काम क्या होता है? फ्लैग इस बात को शो करता है कि भाई ऑर्डर कर दिया है. यानी मिसाल के तौर पर एक और जिस तरह अभी इस वक्त एक आइटम बिका था और 2000 इक्वल टू 2000 हो गया था, क्या ये इस बात की एश्योरिटी देगा कि आज के दिन और कॉलगेट नहीं बिकेंगे? ऑब्वियसली बिकेंगे, 2000 पीस पड़े में यार बिकेंगे. ठीक है, उसी एट द सेम टाइम या 5 मिनट बाद एक और बंदा आता है, सेम कॉलगेट खरीदता है, सेम कॉलगेट खरीदता है, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टॉक आइटम इज कंपेयर्ड टू द रीऑर्डर लेवल. व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल? 2000. और नंबर ऑफ स्टॉक आइटम क्या हो गए? 1999, 1999. तो ये क्या सवाल करेगा? सवाल करेगा कि क्या 1999 इज लेस देन और इक्वल टू 2000? जवाब में आएगा हाँ. और जैसे यहाँ आएगा फिर से ईमेल कर देगा. तो 2 मरतबा ऑर्डर से बचने के लिए क्या होगा? फ्लैग पहली मरतबा में जनरेट हो जाएगा. तो पहली मरतबा जब फ्लैग जनरेट होगा तो चेक करेगा कि नंबर ऑफ आइटम छोटा है, जवाब में आएगा हाँ छोटा है. साथ में एक और सवाल करेगा क्या फ्लैग अपडेटेड है, क्या फ्लैग ऐड हो गया है? तो फ्लैग ऐड होने का मतलब क्या ऑर्डर हो चुका है? जवाब में आएगा हाँ ऑर्डर भी हो चुका है. तो कुछ भी नहीं करेगा, वापस जाएगा और नया बारकोड रीड कर लेगा. दैट्स इट. तो क्या होगा? a flag is added to the correct to the record to stop reordering every time the stock item barcode is read. तो ये इस चीज को बचाता है, रोकता है. When a new stock item arrive, जब नया आइटम अराइव होगा, the stock levels are updated. तो पीछे डेटाबेस में फिर से अपडेट हो. फॉर एग्जांपल 10,000 पीस आ गया तो कितना बचा हुआ था? 1999 बचा हुआ था, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 11,999. एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द बारकोड देयर आर, मैंने जितनी सारी बातें बताई इतने सारे फायदे ही तो है. इट इज मच इजियर एंड फास्टर टू चेंज प्राइसेस ऑफ द स्टॉक आइटम. बड़ा फास्ट है. बस उस बारकोड के बदले में पैसे चेंज कर दो, सब चेंज हो गए, सब अपडेट हो गए. बजाय इसके कि जो है वो हर आइटम के ऊपर पैसे लिखे हो तो उन पैसों को चेंज किया जाता, सिंपल बारकोड के अगेंस्ट में चेंज कर दो तो वो सब के सब चेंज हो जाएंगे. मच बेटर, मोर अप टू डेट सेल्स इन्फॉर्मेशन, ट्रेंड्स. आप जो है वो रोज के आप जो है स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं. आज कितनी सेल हुई, कैसी सेल हुई, कौन सा आइटम ज्यादा बिका.
नो नीड टू प्राइस एवरी स्टॉक, हर आइटम के ऊपर प्राइसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। शेल्फ्स के ऊपर हर चीज की प्राइस जो है बारकोड में छुपी हुई है, दैट्स इट। इसने कॉस्ट भी बचाई, टाइम भी बचाया मैनेजमेंट का। अलाउस फॉर ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल, और सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, आपने देख ही लिया कैसे ऑटोमेटिकली। पॉसिबल टू चेक कस्टमर बाइंग हैबिट्स मोर इजीली बाय लिंकिंग बारकोड्स टू दी कस्टमर लॉयल्टी कार्ड्स। इससे लोग लॉयल्टी कार्ड हमारे, आप देखें इम्तियाज का कार्ड बनता है, सबके कार्ड बनते हैं, लॉयल्टी कार्ड से पता लग जाता है कि कितने लोग किस तरह की चीजें पसंद करते हैं, हम उस तरह के आइटम्स जो है वो रखना शुरू करें। एडवांटेज ऑफ बारकोड, कस्टमर साइड के अगर एडवांटेज देखें, फास्टर चेकआउट क्यूज, आधे घंटे 15 मिनट के अंदर बहुत जो है वो आधे घंटे के अंदर हम एक चेकआउट कर जाते हैं। अगर ये, और ये भी कब, जब हम रश के अंदर होते हैं। अगर रश ना हो तो विद इन 5 to 7 मिनट्स और 8 मिनट्स के अंदर हमारा चेकआउट हो जाता है। अगर आप सोचें, अगर ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता, मैनुअल होता, तो इट वुड टेक 20 to 25 मिनट्स फॉर अ सिंगल कस्टमर टू चेकआउट। ठीक है, तो ये इसने इतना सारा टाइम बताया। एरर्स इन चार्जिंग कस्टमर, एरर की कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय ह्यूमन एरर के। ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल आपने आइटम अपने लेस के चिप्स है एक खरीदे और उसे 2 बार स्कैन कर दिया, तो ये ह्यूमन एरर है, ये मशीन या सिस्टम एरर नहीं है। तो कोई एरर्स जो है ऑब्वियसली रिड्यूस हो गए, इसने ही नहीं बोला जीरो हो गए, रिड्यूस हो गए। द कस्टमर इज गिवन आइटमाइज बिल, इंसान हर बंदे को जो बिल मिल रहा है, ठीक है, वो तो बिल से चेक कर सकता है। कॉस्ट सेविंग हो सकती है क्योंकि इस तरह की सुपरमार्केट जो हमेशा वो कॉस्ट सेव करके देती हैं। एंड बेटर ट्रैक ऑफ सेल बाय डेट्स, अब डेट वाइज चीज़ों को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तभी देखिए आप प्रोमोशंस लगे हुए होते हैं, और प्रोमोशन के ऊपर आप देखें एक्सपायरी डेट वाले आइटम रखे हुए होते हैं, जिसकी 2 महीने में एक्सपायरी है, 1 महीने में एक्सपायरी है, तो बाय 1 गेट 1 फ्री कर देते हैं। क्योंकि अगर ये से ट्रैक ना करें डेट से, तो क्या नुकसान होगा, हमें पता ही नहीं है कि पीछे माल रखा हुआ और एक्सपायर होने वाला है, तो माल पूरा का पूरा ज़ाया हो जाए, एक्सपायर हो जाए, जीरो की कॉस्ट पर आ जाए। इट्स बेटर कैसे 50% रेट पे बेच दिया जाए कि कुछ तो पैसा आएगा। दैट इज द एडवांटेज, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो आप देख सकते हैं इन द सुपरमार्केट्स ऑफ हैविंग बारकोड्स। The barcode system in many other areas, जैसे सुपरमार्केट्स में नहीं, बहुत सारे एरियाज में यूज होता है। It can be utilized in libraries. The barcode is used in books and on the borrower's library card. हर जगह इस्तेमाल होता है। Every time a book is taken out, the borrower is claimed to the book automatically. This allows automatic checking for when the book is due to be returned, for example. तो ये लाइब्रेरीज में इस्तेमाल हो सकते हैं, जहाँ पर जो है वो एक बोरोवर आया, उसका कार्ड, उस कार्ड के ऊपर भी बारकोड है, उसने एक बुक बाय की, उस बुक के ऊपर बारकोड है, तो इस बारकोड ने इस बारकोड को बोरो किया हुआ है। इस तरह लिंक करके जो है वो पूरा ऑटोमेटिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। इसी जो है वो स्टूडेंट्स का बना सकते हैं, स्टूडेंट्स आइडेंटिटी कार्ड के अंदर सिस्टम, जैसे ही बच्चा एंटर हो स्कूल के अंदर, उसके पास कार्ड हो, कार्ड में बारकोड हो, एंटर होते ही सामने बारकोड रीडर हो, बस बच्चा जाए, बारकोड रीडर सामने रीड करवाए, दैट्स इट, बच्चे की अटेंडेंस लग गई। इससे बच्चों की पूरे स्टैटिस्टिक्स आ देंगे, कितने दिन प्रेजेंट हुआ, कितने दिन एब्सेंट हुआ। तो लाइक इट कुड बी यूज्ड एवरीवेयर। लोगों के अटेंडेंस के अंदर, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी सुपरमार्केट, किसी भी जो है वो, मतलब किसी भी इदारे के अंदर जो है वो अटेंडेंस के लिए इसका काम किया जा सकता है। एंड देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन थिंक फॉर द बारकोड टू बी यूज्ड। जी गाइस, so that's the end of the barcode. Let me see what is activity 5.2 is saying. Find out more about how barcode can be used in library. Consider the types of file needed and how the system can track where books are in the library, which books are out on loan, which customer has borrowed a book. You are supposed to do this activity 5.2 and I'm giving you 2 days to complete this task. आप इस टास्क को सबमिट करेंगे, मैं अभी आपका होमवर्क जो है वो असाइन भी कर दूंगा आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर। Carry out some research and find out about as many different barcode applications as you can. Try to find why barcodes are used in each application and determine the advantages of using this type of. अच्छा, आप at least 2 applications आप 2 applications बताएंगे, ठीक है। आप कौन सी 2 applications बताएंगे बारकोड की, अदर देन दिस लाइब्रेरी एंड स्कूल, जो मैंने आपको बताया, स्कूल, लाइब्रेरी, और कौन सी अभी जो हमने सुपरमार्केट इस्तेमाल की वो। इनके अलावा आप कोई भी 2 एप्लीकेशंस बताएंगे जहाँ पर बारकोड जो है वो रीड हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपका जो काम है वो ये होमवर्क के लिए एक्टिविटी 5.2 एंड 5.3 आई एम गिविंग टू यू गाइस, एंड द सबमिशन डेट इज Wednesday. आई एम पुटिंग इट इन ऑन द पोर्टल where you can see this homework. Okay guys, activity 5.2 and 5.3.
Okay, now let's move on. QR codes. QR codes are little bit different from the barcode. Work is same, काम वही है, information छुपी हुई होती है. Difference is very different. Difference is that not in the picture. मैं इनकी डिजाइन की पिक्चर डिफरेंस की बात नहीं कर रहा कि बारकोड जो है वो लाइंस के अंदर होते हैं और क्यूआर कोड जिस तरह स्क्वायर शेप के अंदर है. डिफरेंस इसका बहुत बड़ा है. ये मैं सेकंड पैराग्राफ अगर पढूं, to make a comparison, normal barcode can hold up to 30 digits, whereas QR code hold over 7,000 digits. That's the huge difference. The barcode can only hold 30 digits data, whereas the QR code holds 7,000 digits data. तो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर की जा सकती है. दिस ऑब्वियसली गिव्स ग्रेटर स्कोप फॉर दिस स्टोरेज इंफॉर्मेशन. इसके अंदर क्यूआर कोड की तो मतलब बेइंतहा की जो है वो एडवांटेजेस ये हैं कि modern smartphones allows internet to access the barcodes, QR codes. QR codes can be scanned anywhere. This allows of advertising of products on trains and buses and small malls and many other places by using the built-in camera facility. ये कितने सारे फायदे हैं कि हर जगह पर जो है वो कहीं पे भी एक स्टिकर लगा दिया, वहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी और आगे लिख दिया स्कैन दिस कोड एंड get the chance to win and scan this code and get the further information. लाइक इस तरह की चीज़ें. लोग आते हैं एयरपोर्ट्स पे उतरते हैं, अभी कुछ भी अपना टूर प्लान नहीं किया हुआ होता और फौरन जो है वो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के एडवर्टीजमेंट्स होती है जो कि जो है वो इन क्यूआर कोड्स, लोग टूर एंड टूरिज्म के लिए जो है वो इन क्यूआर कोड्स को स्कैन अपने पास रख देती है. लोग आते हैं एयरपोर्ट्स पे उतरते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अच्छा भाई कौन सा हमें ज़्यादा फायदे में हो रहा है उसको उसके साथ प्लान करते हैं और निकल जाते हैं. एयरपोर्ट्स पे बाहर गाड़ी आ जाती है, इनको पिक करती है, उनके 5 दिन का टूर होता है पूरा करवाती है. तो मतलब कितना ज्यादा मतलब एडवांसमेंट की तरफ आ गए हम. बारकोड्स पे कहाँ सिर्फ लिमिटेड पॉइंट पे थे कि आप जो है बस इतना काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट करवा सकते हैं किसी भी सिस्टम को. लेकिन क्यूआर कोड जो है वो बहुत ज्यादा बियॉन्ड चला गया हमारे, बहुत मतलब जो है वो हर जगह पर पहुंच गया, हर इन्फॉर्मेशन के अंदर स्टोर हो रही है. आप देखिए मैगजीन्स के अंदर जो संडे पे आपका जो है वो संडे को आपका जो डॉन आता है, डॉन के अंदर कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट क्यूआर कोड्स के साथ होती है कि आप ये एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप जाएं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, अंदर हम जिस चीज़ की एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये ले 4 तस्वीरें इसके अंदर स्टोर्ड है, आप गाड़ी देख भी लें. मतलब इंसान को कितना फायदा होगा, उसने घर से उठ के वहाँ पे नहीं जाना, उसने इतना लंबा अपना पेट्रोल टाइम कॉस्ट अपनी नहीं लगानी, अपनी गाड़ी जो है वो 4 तस्वीरें यहीं पे देख ले लाइक OLX. ठीक है, तो क्यूआर कोड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर. आप लोग का एक और काम मैं छोड़ के जा रहा हूँ. यू आर सपोज टू स्कैन दीज क्यूआर कोड्स फ्रॉम योर सेल फोन्स, फिगर 5.8 एंड फिगर 5.9, एंड आप मुझे जो है वो बताएंगे कि जो है वो इसके रिटर्न में क्या हुआ. आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं. एंड लेट्स सी व्हाट यू वांट टू आस्क.